Hello. Yes, sir. Okay, let us wait for some more students. Okay, let us wait up to 4:15, and then we'll begin our class. Okay. Siram, were you absent yesterday? Yes, sir. I was absent. Okay. Did you check out the video that I uploaded in the Telegram? No, I have not. Okay, I have shared the link there in the in the WhatsApp group. Okay, kindly connect that one. What happens is that in WhatsApp, I'm unable to share whole the video because it's too vast to handle. And moreover, I want to keep it private, so I'm using a Telegram as a channel. Since you are paying, and so I'm trying to make it only accessible to you only, guys. So that's why I'm using Telegram channel and uploading the videos there. Okay. If you miss any Mm, class, you can go and you can refer there. okay, sir. Okay. Let me update the students. Okay. Hello, Mr. Navam Tagi, Karkaji, Doidium, Bob. Good evening, everyone. Good And evening, Miss sir. Siram. So I hope all of you are regular. Did any one of you miss the class yesterday? कल आप लोगों ने किसी ने क्लास मिस किया? आप लोग में से कोई ऐसे है जिसने कल क्लास मिस किया हो? अ, जी सर मैंने मिस किया था सर। ओके, तो आपने वो टेलीग्राम चैनल को रेफर किया जो मैंने लिंक भेजा था? जी 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 सर। हाँ, ओके। तो वहाँ में वीडियो आप देख लिया, तो वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, इफ यू मिस एनी क्लास, वहाँ पे सब रहेगा। ओके। ओके एंड सर ओके। रिगार्डिंग, वन स्टूडेंट वाज रिक्वेस्टिंग मी कि उसे यूट्यूब पे डाला करो सर। YouTube is a public channel. Okay? Telegram is a kind of it's a private channel. So I'm trying to keep it private because you all are paying for that particular session, and फिर हम उसको YouTube में डालेगा, it won't make any difference there. Okay. Or Telegram, as far as I know, it doesn't occupy the space of your cell phone. If I'm right, Telegram में अपना space रहता है सर। Am I correct? या फिर वहाँ पे space cover करता है फोन का? Okay. We have 8 students now. Let us at least have 10 students.
ओके, फिर सिद्धू तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, 3 मिनट, लास्ट 3 मिनट, थोड़ा सा सबर करिएगा, लेट अस वेट for 3 minutes, and then if the number of students remain the same, he will then also will begin our class. Okay. तो इस बैच में टोटल स्टूडेंट कितना है? Okay. As far as I can see in the WhatsApp group, there are total number of the members there are 77, but what we can see is that the only students that are attending class is, as far as the strength I have seen, is 19 or 15 or more or less 20. MG, how are you? Mr. MG? Fine, sir. Okay. I've been seeing you repeatedly. As far I can see that, as far I've noticed, up हमेशा regular आता है, so it's quite nice. So you also participate in answering and all those things. It's very nice. Okay. Okay, thank you, sir. Now, okay, let us begin our class. Okay, let's not wait for them any longer. समय किसी के लिए नहीं रुकता है. Time and tide waits for none. Okay. चलिए कल, yesterday, what we did was we studied up to fraction. We studied the kind of fraction, right? तो हम लोगों ने किस किस को पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था proper fraction, improper fraction, mixed fraction and continuous fraction. ठीक है, let me know. Anyone? Yes, sir. ठीक है, कुछ पूछना है बताइए एक बार, किसी को पूछना हो तो. मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम और एक बार आप लोगों को बता देंगे. ओके, आई विल मिक्स्ड फ्रैक्शन को और एक बार बता देंगे, बिकॉज मिक्स्ड फ्रैक्शन से देखा है क्वेश्चन आता है. ओके, sorry, not mixed fraction, this continuous fraction. So today is date 7th March, Thursday, day 24. The time is 4:16 p.m. Let us begin our class. Continuous fraction. Okay. तो मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन पे क्या रहता है कि एक नंबर को हम लोग क्या है रिपीटेडली फ्रैक्शन में बदलता है. ओके, तो ये फॉर एग्जांपल, सॉरी नीचे के डिनोमिनेटर नहीं, ये 5 और 34 कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं, ये कभी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 5 एक प्राइम नंबर है और 34 इवन दो इट्स इवन नंबर होने से भी पीछे में 5 नहीं है, तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा. तो इसको ऐसे नंबर को हम लोग एक कंटिन्यूस फ्रैक्शन में बदल सकते हैं. तो सबसे आगे मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं. 6 5 30 प्लस 4 34. ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर पे है, दिस
5, ये 5 को फिर हम और एक फ्रैक्शन में बदलेंगे। ओके, दिस 5 को हम लोग, 5 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकता है, 1 + 1/4 लिख सकता है। यस, तो इसको हम लोग क्या कर देगा अभी, 1 + 1/4 में बदल देगा। तो देखिए एक एक नंबर को हम लोग कितना फ्रैक्शन में बदल दिया, डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन में बदल दिया। इसको बोलता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, समवन लाइक दैट आपको हम और देगा, जैसे कि 29/3। इसको अगर ये कंटिन्यूअस मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलो बोले, सबसे आगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। ओके, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में बदलो बोले, ये लिख दिया आप। ये 3 को क्या करना है, 3 को हम लोग और भी काट सकते हैं। ओके, ये 3 को हम लोग 3 को हम लोग क्या लिख सकता है, 1 + 1/2 लिख सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, समझ में आ रहा सर। यस। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये हम लोग का एग्जांपल ये हो गया, सॉरी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, हम बार बार मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल रहे हैं उसको, पहले सॉरी। ओके, तो कल मैंने एक स्टूडेंट को बोला था कि अगर आपको एक ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया जाए, सॉरी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन दिया जाए, जिसमें 1 + 1/4, 1 प्लस ऐसे दिया हुआ था। ओके, ये नंबर को अभी क्या करना है, हम बोला था इसको एक फ्रैक्शन में बदल देना है। क्या में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में इसमें मैंने कहा था कि जो लास्ट में हम लोग का जो 3 डिजिट मिलता है, ये जो लास्ट में ये 2 डिजिट होता है, उसको लिख देना है 4 एंड 5 को लिख देना। तो फिर कितना 1 है, 1 2 3, अब 3 to 1 लिख दो, 1 2 3। ठीक है, फिर ये देख लीजिए अभी। ठीक है, ये दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 4 और 5 को प्लस करने से कितना आ जाएगा, 9। 9। फिर 9 और 5 को प्लस करो, कितना आ जाएगा, 13 14 का 14। 14। 14 और 9 को प्लस करो, कितना आ जाएगा, 24 23। 23। sorry ओके, yeah तो क्या होता है अभी इसमें, इसमें ये दो लास्ट डिजिट रह गया, तो ओके, so this last digit acts as a numerator and this last digit acts as a denominator। ठीक है, ओके, ये हम लोग के ओके ट्रिक है। सर। हाँ, तो उसने मुझे पूछा था कि सर ये कैसे सही, कैसे हम विश्वास, वो बात का बताऊँ को बोला था सर इसको थोड़ा बटा के लिखिए, और इसको इन केस आपको चेंज करना हो, तो ये जो थोड़ा लंबा जाएगा। अब देखिए सबसे आगे से ये नंबर को मैं वापस सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सिंपल में 5 1 जा 5 + 4 9, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, अभी ये पर्थ सोल्व हो गया कि नहीं हो गया, अभी यहाँ पे आ गया। फिर अभी ये पर्थ को सोल्व कर, 9 1 जा 9, मल्टीप्लाई इसको प्लस, 9 1 जा 9 + 1 10। ठीक। यस, 1 + 1/10। अरे यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, तो यहाँ पे रिफर करके दिखेगी। ओके, दिस, मैंने इसको बदला था।
नंबर कितना है? 23/4. ओके. चलो कुछ हो गया, बड़ी बात, इसे सॉल्व करके देखते हैं. ओके. फोर प्लस should give us 9. Okay, 9/5 रहते थे ना, 5/5. 9/5 रहते, 5 ऊपर चला जाएगा इसमें. फिर से 9 मुझे 9 + 4 तो रह जाता है हम लोग का 14/9. 9 ऊपर चला जाता है. 14 1 जो 14 + 9 23/14 आया है ना. रुको, अब इसको तो बता देगा, ये तो कुछ हो गया शायद, मे भी. यहाँ पे ओके, पे टेंशन हियर. हम लोग का नंबर था ये. ओके, दिस वाज आवर नंबर. तो सबसे आगे मैंने क्या किया, 5 इन, ये 5 और 1, 5 + 4. कल हम सिखाया था ना मिक्स फ्रैक्शन में, आप 1 + 4/5 देने से आप इजीली एलसीएम लेने का कुछ चिंता नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दो. तो 5 + 4 कितना आ जाता है, 4/9. बट ऊपर में और एक नंबर है, तो ऐसे में क्या चला जाता है, ये नीचे नंबर ऊपर चला जाता है. ओके. तो ऐसे होके ये 5, सॉरी दिस इज नॉट 9. ओके, दिस इज 9/5. दिस इज 9/5. 9/5 है, तो 5 ऊपर चला गया, यहाँ पे देखना रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं हुआ. हुआ. ओके. फिर ये स्टेप को मैंने यहाँ पे किया. यहाँ पे 9 1 जो 9 + 5 दैट इज 14. 14/9 आया. तो जब ऐसे नंबर दिया जाता है तो नीचे नंबर ऊपर चला जाता है, तो ये 9 जो ऊपर चला गया, 1 × 9 इज 9. तो फिर ऐसे आने के बाद क्या किया, 14 1 जो 14 + 9 23/14. ओके. समझ में आया आप लोग को. और इन केस ठीक है, इसको यहाँ पे रहने दो. हाँ, आप इनकेस पजल और अभी के लिए हम लोग डिस्टर्ब करते रहेंगे. इस सब बाद में क्वेश्चन जब हमें ये सबको खत्म होने के बाद जब एक बार क्वेश्चन सोल्व करेगा तब आपको तब अच्छे से समझ आएगा. ओके. यार सिंपल से फ्रैक्शन को थोड़ा समझने के लिए ट्राई करते, फिर से फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का काइंड समझना था समझ लिया. और ये डोंट वरी अबाउट दिस वन. ओके, ये जो आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है, उसको हम लोग जब पेपर सोल्व करेगा, जब आपको जैसे कि मॉक टेस्ट ऐसे का कुछ भी पेपर देगा, तो वहां पे हम लोग जब उसको सोल्व कर रहा होगा तब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आने से, तो आई विल लेट यू नो वहाँ पे क्या क्या होता है. बस अभी के लिए पहचानिए इसको, ऐसे किया जाता है. ओके. कभी कभी वहाँ में एक्स्ट्रा नंबर भी आ जाते हैं, वो नंबर को भी बाद में देख लेना है. अभी के लिए इतना जरूरी नहीं है. ओके. नाउ फ्रैक्शन में हम लोग का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, multiplication and
ऑफ बोल के हाथ रखता है। ओके, तो यहाँ पे देखना आपने, जैसे कि आई विल गिव यू ये फर्स्ट के लिए, एडिशन के लिए, इफ आई गिव यू 2/3 प्लस 4, इसको कैसे करेगा? तो क्या ये 2/3 4 को हम 4 प्लस 2/3 भी तो लिख सकते हैं ना? और कल जो हम लोग सीखा था, जब मिक्स फ्रैक्शन में 5 2/3 जैसे कि हम दे देगा तो क्या करता था, 3 5 15 प्लस 2 दे देता था। देर इज यहाँ में मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे प्लस। तो जब नीचे में कुछ भी दिया हुआ नंबर नहीं होता है तो ऐसे में आप सीधा 3 4 12 प्लस 2 14 14/3 कर देना है। वेर एज इन केस आप ऐसा नहीं करना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं इसको, व्हाट वी कैन डू इज 2/3 प्लस 4 बाय नीचे कुछ भी नहीं है 1, तो दोनों का एलसीएम ले लेगा 3 और 1 के। तो 3 और 1 सिंस दिस इज अ प्राइम नंबर तो ये लोग का एलसीएम होगा नहीं है। होने से भी क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट जो अपना नंबर ही होगा खुद से। ओके, तो 1 3 जब 3 आ गया तो 2 लिख देगा यहाँ। तो 3 का कितना मल्टीप्लिकेशन में 3 आता है, 1 टाइम्स। तो जो न्यूमरेटर के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई कर देगा, फिर ये एडिशन साइन नीचे आ जाएगा। एंड 1 के कितने मल्टीप्लिकेशन में 3 आता है, दैट इज 4 का 4 इंटू 3 कर देगा। तो हम लोग को मिलेगा 2 प्लस 4 3 12 3, दैट इज 14/। तो क्या ये आंसर, लेट मी नो, ये आंसर और ये आंसर सेम आया है? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो देखें हम लोग बहुत शॉर्ट से यहाँ में ही खत्म कर सकते हैं, राइट? Hmm. तो वही चीज का अगर अब फिर मैं दे दूं 2/3 -4, फिर इसको हम थोड़ा लॉन्ग डिवीजन में करके देखेगा। चलिए लॉन्ग डिवीजन से पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, देयर इज 12 माइनस 2 कर दीजिए, देयर इज 10/3। अब इसको चेक करके देखिएगा। ओके, तो मैं ले लूंगा एलसीएम, तो 3 वही आएगा, 2 भी वही आएगा, 12 भी वही आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। 10/3 आ रहा है ये लॉन्ग डिवीजन स्टाइल में। 2/3 माइनस 4/1, दोनों का एलसीएम ले लिया 3, 2 इंटू 1 है, ये 12 कहाँ से आया? ठीक है, इसको एक बार कैसे कर देता हूँ, 2/3 -4। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन को तो साथ में सीख लेते हैं। ठीक है, एडिशन तो अभी ऊपर का किया, ये अभी सब्सट्रैक्शन को दिखा रहा है सोच। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं है तो नीचे 1 दे देना है। एलसीएम प्राइम नंबर है तो दोनों का मल्टीप्लाई ही होता है। 3 इज प्राइम नंबर, 4 इज प्राइम नंबर, तो 3 इंटू 1 इज 3। ओके, तो कर लिया हम लोगों ने। तो करने के बाद 2 इंटू 1 टाइम माइनस 4 इंटू 3 टाइम, दैट इज 2 1 2 3 एंड 12, दैट इज 10/3। किसका साइन भरा है, माइनस का। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे नंबर जो आगे पीछे हो गया था, ठीक है, सॉरी दिस वन इज 12। इसका तो ये आंसर और ये आंसर सेम है। हाँ सेम है सर। यस राइट। तो अभी आपको ऐसे चौताला देने से तो आप फटाफट सॉल्व कर लेगा ना, आपको ज्यादा पेपर का जरूरत नहीं है लंबा चौड़ा। ठीक है, अभी करेंगे इन केस आपको दिया जाए 2/3 प्लस 5/7, तो इसको क्या करना? तो अभी भी देख पा रहा है दिस टू आर, ये ऐसे जब होता है तो आप थोड़ा देखिए, थोड़ा इसको थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। ओके, ये नीचे का एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर का क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज
21 होगा इसका एलसीएम। क्यों? बिकॉज 3 और 7 एक प्राइम नंबर है, किसी से होता भी नहीं है, तो ऐसे नंबर का मैंने क्या कहा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका एलसीएम बन जाता है। ओके, देन 21 हो गया। तो 2 3 के कितने मल्टीप्लिकेशन में 21 आता है? दैट इज 7, राइट। और अब प्लस कर दूं मैं, रह गया 5। 7 के कितने मल्टीप्लिकेशन में 3 आता है, 21 आता है? इंटू 3, दैट इज 7। 21 को रह देते हैं, 7 टू 14, 5 3 15, दैट इज 9 2, दैट इज 29/21। दिस इज आवर आंसर, राइट। अभी इसको फिर एक बार हम क्या ट्राई करेगा, अल्टरनेटिव में एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओके, 2 + 5 3/7। चलिए ऐसे करके देखते हैं, नीचे में जब प्राइम नंबर है दोनों का एलसीएम क्या होगा, कितना होगा? 21 ही होगा। 21। तो अभी इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 7 + 5 × 3। So this one's 14, right? तो आंसर भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या किया, मतलब नीचे में देखा कि कौन सा नंबर है। ओके, प्राइम नंबर था, इसलिए हम जो सीधा क्या कर दिया, इसका तो एलसीएम करने से 21 या 3 × 7 इसको तो हम सीधे एलसीएम करने का भी जरूरी नहीं है, प्राइम नंबर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई को लिख देगा। तो इसके बाद 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 14 आ जाता है, प्लस 3 5 15, हाँ 29/21 हो गया आंसर। इतना तक जाना जरूरी नहीं है ना, यहाँ पे हो जाता है, राइट। अभी और एक बार अलग टाइप का नंबर, 3/4 + 2/6। अब इसको देखिए, ये नीचे का नंबर क्या नंबर है? इवन नंबर है। चलिए ट्राई करते हैं। तू इसका एलसीएम लेगा, 2 2 4, 2 3 6, देयर इज, अभी 2 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और कटेगा नहीं, तो ये लोग सबको हम मल्टीप्लाई कर देगा। 2 2 4, 4 3 12, फिर हम लोग का एलसीएम क्या हो गया? 12, देयर इज, तो 3 रह गया, 4 की कितने में 12 आता है? 4 3 12 प्लस 6, सॉरी 2 इंटू 6 के कितना में 12 आता है? इंटू 2 में आता है। 6 2 12, तो ये 2 जो न्यूमरेटर के साथ हो गया, 9 + 4 12, देयर इज 13/12, ठीक है। तब जब आपको प्लस देता है, माइनस या फिर जो भी, इनके नीचे में प्राइम नंबर नहीं है, नंबर और डिवाइड हो पा रहा है, तो इसको आप सीधे एलसीएम ले लेना है। ओके, ये तो फ्रैक्शन सबको मालूम है। अगर मैं कह दूं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस था, ये क्या हो जाएगा, ये साइन में भी माइनस आ जाएगा, और जो भी रिजल्ट होगा बीच में माइनस हो जाएगा। 9 और 9 - 4 कितना आ जाएगा? आंसर इज 5 5/12, ठीक है। इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा बताने को नहीं है, राइट। हाँ हाँ ठीक है सर। नाउ यही, चलिए अभी आपको मैं एक दे देता हूँ। चलिए इसको सोल्व करिए। 6/5. 6/5, ओके। हाउ कम? बिकॉज आपको यहाँ पे यस, द आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे व्हाट वी हैव टू सी इज दैट
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज गिवन देयर, ओके। जब मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो हम लोग ये चाहे ये दिन ये अलग जगह पे हो, ये ऊपर या नीचे हो, मतलब दिस इज अनदर फ्रैक्शन, दिस इज डिफरेंट फ्रैक्शन, देयर आर टू फ्रैक्शंस हियर, ओके। तो यहाँ का डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर को काट सकता है, और यहाँ का न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काट सकता है, कुछ भी हो सकता है जब मल्टीप्लाई हो, ओके। अगर यही जगह में मैं लिख दूं 3/2 प्लस 4/5, ये चाह के भी इसको नहीं काट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मिलेगा नहीं। और यहाँ पे देखना, ये दोनों प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर को हम 2 5 10 लगा सकता है। ये इसको मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, 15 8, नहीं 4 2 8, 3 5 15, it is 13/23/10। अरे ये कैसे आ गया, प्लस ये जो है, ये हम लोग का होगा जब एडिशन पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आप जब नीचे में प्राइम नंबर देते हैं तो ऐसे सोल्व करना है। वेयर यहाँ में था मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर सेम नहीं हो सकता, कि प्लस इज वेरी डिफरेंट एंड प्लस इज वेरी डिफरेंट, ओके। तो वैसे मैं हाँ अगर दे दूं 3/2 प्लस 4/8, तो जब प्लस होते मैंने कहा था कि ये एक दूसरे को नहीं काट पाएगा, लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे 4/8 को हम 2/4 लिख सकता है। Sir, 1/2. यस यस, आगे इसको हम मतलब इतना लिख सकते हैं, राइट। इसको फिर फ्रैक्शन को हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लोग 1/2 लिख सकता है। यस, ठीक है। इनकेस जब ऐसे फ्रैक्शन दिया हो, अब ये अपना फ्रैक्शन ऊपर नीचे नंबर कर सकता है, ओके। बट ये दूसरा सेट को छूने नहीं सीखेगा, ये भी इसको छूने नहीं सीखेगा, ओके। फाइन विद दैट, अब मैं दे दूं 3/2 इंटू 4/5 प्लस 5/2। इसमें क्या करना है, आप लोग जैसे कि कभी पढ़ा होगा बोडमास, BODMAS, ठीक है। ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ है, नहीं है, डिवीजन है, नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है, यस। ऐसे में सबसे आगे आप क्या है, मल्टीप्लिकेशन को कर देना, ठीक है। तो अभी ये कर देगा, इट इज 6/5, ब्रैकेट में है, प्लस 5/2। अभी ये ब्रैकेट हम लोग हटाने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओके। प्लस 5/2, देर इज मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसका क्या है, एडिशन। हम लोग इसका भी ऐड कर दे, अभी भी ये दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है, इसको हम सीधा 10 कर सकते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 को 5 से, 6 टू जा 12 प्लस 5 5 जा 25, दैट इज 7 3 10, दिस इज द आंसर, ओके। अगर इसको मैं कहूँ, इसको और स्मॉल फॉर्म में लिखो, तो डेसिमल में क्या करता था, कितना जीरो है, एक जीरो है, दैट इज एक डिजिट के बाद ऊपर नंबर में डेसिमल लगेगा, इसको हम 3/7 भी लिख सकते हैं, यस। यस सर। फॉलो कर पा रहे हैं, सब सक रहे हैं ना, आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं ना, कुछ होता हो गया होने से थोड़ा बताना मुझे। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ओके, विल मूव अहेड। एंड 6 is 2/3 ऑफ 4, इसका क्या होता है, 8/3. 2 into 3 ऑफ को क्या कर देते हैं हम लोग, इंटू में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके बाद 4 लगा देते हैं, ओके। तो अभी देखना है, ये नीचे में कुछ नहीं है, हम लोग 1 दे सकते हैं, तो न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई, दैट इज 4 2 8, 3 1 3, ठीक है।
ठीक है सर। और अगर मैं दे दूं 3/2 डिवाइड 6, इसको कैसे करना है? आप लोगों को कभी कभी सिंप्लीफाई करो बोल के देते हैं, हाँ, ऐसे टाइप का नंबर सिंपल सा। तो ऐसे को क्या करना है, जो लेफ्ट साइड का फ्रैक्शन है रहने देना, बिकॉज ये 6 का सिंबल क्या है, ये डिवाइड है, ओके। इसलिए अब ये डिवाइड को जब हम लोग सोल्व करने ले जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कर देता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। और दिस 6 क्या हो जाएगा, 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट इज 1/6। 5/3. 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/6। देयर इज 3/12 लिख सकते हैं, ओके। इसको और सिंप्लीफाई करने से 3 1 3, 3 4 12, दैट इज 1/4 इज द आंसर, ओके। फाइन विद दिस। एंड अगर इसका जगह में हम पे अटेंशन, ओके, अगर मैं लगा दूं यहाँ पे 5, तो ये ओके, ये स्टेप सेम है, यस, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, लेकिन 6/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/6, ओके। देयर इज न्यूमरेटर ऊपर वो चला जाएगा, डिनोमिनेटर, देयर इज डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो फिर आंसर हम लोग का ये सिनेरियो के लिए क्या आ जाएगा, 15/12। तो फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3/15, 3 4 12, ठीक है, ओके। जी सर। Yes. इसके साथ आज हम लोग का फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे खत्म कर देगा, एंड वी विल बिगिन विद आवर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ओके। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को देखना, इसके साथ आप लोग का बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आता है। दिस इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? रेशियो मतलब क्या है, टू कंपेयर एनीथिंग, टू कंपेयर एनीथिंग इज नोन एज रेशियो, ठीक है। when we compare the two quantities in terms of how many times, उसको बोलते हैं हम लोग रेशियो। फॉर एग्जांपल आप देखना, ओके, जैसे कि ए और बी दोस्त है, ओके, तो दोनों ने, ए ने कलेक्ट किया 30 फ्लावर्स और बी ने कलेक्ट किया 45 फ्लावर्स, ओके। तो हम लोग यहाँ में क्या बोल सकता है, बी जो ए से कितना ज्यादा फ्लावर कलेक्ट किया, 15। 15. yes, that is b minus a is equal to, that is 45 minus 30, ठीक है। अगर मैं बोल दूं, इफ आई से कि बी ने कलेक्ट किया है 961, अभी बताओ ए ने कितना कलेक्ट किया। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट इज, यहाँ पे नाउ थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। अभी ए और बी को मैं अभी रेशियो में बदल देता हूँ, 30/45, ठीक है। रेशियो में एक्चुअली ऐसे लिखता है, ए, ये इज टू बी, ये जो दो डेसिम, दो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग बोलता है, यहाँ पे इन मैथमेटिकल टर्म में इसको हम लोग बोलता है इज टू पढ़ता है, ओके, इज टू, दैट इज, इसको बोलते हैं ए इज टू बी, दैट इज ए रेशियो बी, दैट इज ए बाय बी रहता है, ओके। तो
ये इसका रेशियो में क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड खत्म करो, दोनों का कॉमन फैक्टर है, यस। 5 6 30, 5 7 5 6 30, 5 9 45, 15 से भी करने से आ जाता था, 3 2 6, 3 3 9। देयर इज ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3, ठीक है। तो इसमें देखना, ओके। तो मैंने कहा था बी ने कलेक्ट किया है 961 फ्लावर्स, ए ने कितना कलेक्ट किया। तो हम लोग को मालूम है ए बाय बी का रेशियो कितना है, 2/3 है, ओके। तो ए का जगह में मैं लगा दूंगा, सॉरी, बी का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना, बी का जगह लगा देना है 961 इज इक्वल टू 2/3। तो अब ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसा, लेकिन 3 को आप उधर रहने दे सकता है, 2 इंटू 961 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यहाँ से जो भी सिंप्लीफाई करके नंबर आ जाएगा वो होगा हम लोग का आंसर, ओके। तो रेशियो में ऐसा होता है कि जैसे कि आप एक बार कंपेयर करेंगे, जैसे कि बोलेगा, हम्म हम बोलेंगे जैसे कि हम महीना में 20,000 कमाता है, ओके। आई अर्न 20,000 इन ए मंथ, एंड ए जो बोलता है कि एक महीना में हम 20,000 रुपया कमाते हैं, ओके। और बी जो बोलता है कि हम 1,000 रुपीज कमाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी जो क्या बोल सकता है कि, बी जो बोल सकता है कि यू अर्न 20 टाइम्स मोर देन मी। बोलता है कि नहीं बोलता है, ये तो हमसे 20 गुना ज्यादा कमाता है। ये क्यों बोल पाता है, बिकॉज ए जो बी जो ए का अर्निंग को अपना अर्निंग का रेशियो में कन्वर्ट कर रहा है, जैसे कि 20,000 हो गया, जिसमें हम 1,000 से डिवाइड कर देता है, तो ए अर्न्स 20 टाइम्स बी। बी का जितना अर्निंग है ए जो 20 टाइम्स अर्न करता है। अगर मैं बोलूं बी का अर्निंग है 5,000, तो ए का अर्निंग अभी कितना होगा, 40. हम इसको क्या कर देगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, ए के लिए, बिकॉज देखना, ओके। आई सेड ए अर्न 20 टाइम्स मोर देन बी, देयर इज 20 इंटू 500, देयर इज तीन, कितना जीरो, 1 2 3 4, चार तो जीरो डाल दो, 5 2 10, देयर इज 1 लाख। कितना कमाता है 1 lakh. ये। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोग को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसलिए जब जरूरत है जब आप कुछ चीज को कंपेयर करते हो, क्या। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल, बात का बात, देखिए हम बोलेंगे ये एक वस्तु है, इसका हाइट है 20 मीटर, और ये एक सामान है, इसका हाइट है 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर। अभी मान लो ये एक आदमी, ओके, ये भी एक आदमी। तो ये आदमी जो बोलता है, ये आदमी ए जो बोलता है बी को, ये बी है, हम तुमसे कितना है, सॉरी, बोलता है हम तुमसे, तो कितना 10 टाइम्स ज्यादा है कि नहीं है। अब देख के देखिए, ए इज टू बी करके देखिए, 20/2, 10 टाइम्स ज्यादा है। तो ये ए जो बी को बोल सकता है हम आपसे 10 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। यस सर। Yes, बोल सकता है, ओके। पर लेकिन यहाँ पे व्हाट टू अंडरस्टैंड हियर एंड व्हाट द पॉइंट इज हियर इज दैट
यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मीटर है, देखा ना? ये मीटर और ये सेंटीमीटर क्या एक यूनिट है? नहीं है सर, अलग है। नहीं है। तो उसको अभी हम कंपेयर कर पाएगा? नहीं सर। नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेगा, सिंस ये बी के साथ कंपेयर कर रहा है, तो ओके, सिंस बी के साथ कंपेयर कर रहा है, तो हम लोग क्या करेगा, ये जो 20 मीटर को है हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा। उसको आप थोड़ा ध्यान देना अभी। ओके, इट विल गेट इंटरेस्टिंग। ओके, अभी यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग होगा, MCD MDH के कभी सुना है? MDH के मसाला तो सुना होगा, जो हम लोग थोड़ा पुराना, ये नया जनरेशन शायद नहीं सुना होगा। M is for milli, that's me, सेंटी, देसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ओके, तो हम लोग कितना है, 20 मीटर को क्या में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो सी कहाँ है, सी इज हियर, राइट? सी को हम लोग क्या में कन्वर्ट करना है, मीटर पे। ठीक है, तो यहां से कितना कदम गया, एक कदम, दो कदम, कितना कदम गया, दो कदम। तो हम लोग क्या कर देते हैं इसको अभी, दो कदम है तो जो भी नंबर है उसके साथ वन लगा देना, और कितना कदम गया, दो कदम गया, उसके साथ दो जीरो लगा देना। क्या लगा देना है, दो जीरो। ये बन जाएगा अभी अब 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसके साथ आप जो ये बी का क्वांटिटी उसको शेयर करो, तो बी से अभी कितना है, 1000 टाइम्स लार्जर है कि नहीं है, कंपेयर करने से? है सर। यस, नाउ द करेक्ट आंसर इज 1000। ओके, अभी फिर आपको और एक एग्जांपल देगा, रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, कि रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मी एंड दिस एमजी, ओके, मिली एंड एमजी ने क्या किया, बिजनेस किया। ओके, वी डिड ए बिजनेस। तो उसमें हम दोनों का क्या है, क्या कितना का रेशियो दिया, हम लोग का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:3। अभी क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया 4 लाख। ओके, तो मैंने बोला चलो हम लोग इसको 4 लाख को 2 लाख डिवाइड करेगा, दोनों को बराबर मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम है? मिली और एमजी को एक इतना मिलने से अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है सर। बट व्हाट हैपेंस इज देयर, तो हम लोग क्या हुआ कि ये जो एमजी जो बोला नहीं यार, हम तुम जितना डाला था, तुम इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी का 2% और हम दिया 3, मतलब हम दोनों का डालने का इतना अलग डिफरेंस है, तो हम ज्यादा इन्वेस्ट किया तो हम क्यों बराबर बात करेंगे। तो हम लोग गया है किसके पास, चलिए बॉब के पास गया, बॉब को बोला कि ए यार कुछ हो गया, सॉर्ट आउट कर देना। तो बॉब जो बताया कि अरे ऐसे ऐसे हो गया, तो ऐसे करना, इन्वेस्टमेंट कितना है, 2:3। ठीक है, चलो दोनों के इन्वेस्टमेंट को प्लस करो, कितना आ गया, 5 आ गया। तो अभी क्या होगा, मिली का, मेरा जो इन्वेस्टमेंट था, मिली का इन्वेस्टमेंट था 2, ये क्या होगा, जितना टोटल प्रॉफिट है उससे हमको 2/5 मिलेगा। समझ रहा है, ये 5 क्यों आया यहाँ पे? और जो mg है उसको कितना मिलेगा, 3/5 मिलेगा, जो भी प्रॉफिट है।
ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ सर। जी सर। तब हम लोग को अभी होते हैं ना, तब हम लोग क्या होते हैं शेयर मार्केट में बोलते हैं हम तुमसे ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए हमको तुमसे देना पड़ेगा 60%, तुम रखेगा 40%। वो सब क्यों बोल पाता है? बिकॉज सेम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, सेम आइडिया है, सेम चीज है, लेकिन क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो क्या है डिफरेंट है। देर इज, जब आप बिजनेस करते हैं देर स्पेशल पर्पज क्या होता है कि आप अर्निंग करने के लिए, इसलिए आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको काटने से कितना आएगा? ठीक है, इसको काटने, ये दोनों तो सेम सेम नंबर है, तो इसको डबल गिनती करने का जरूरी नहीं है। अब बोले मिली को कितना रुपया मिला? 16, 1,60,000, राइट। एमजी को मिला है 8 3 24, दैट इज 2,40,000। क्या बॉब ने सही डिवीजन किया? यस सर। यस। जितना आप इन्वेस्ट किया आपको उतना मिलेगा, आप उससे ज्यादा मांगो मत, बोला, ओके। ठीक। फिर हम लोग अपने दोस्त लोग के बात चलते हैं कि यार हम बोलते हैं हम लोग बोलते हैं हम बाइक लेगा, ओके। क्या लेगा? बाइक, दुकाती लेगा, दुकाती। दुकाती बाइक लेगा जिसका दाम है बात के बाद। हम बोलते हैं दुकाती बाइक लेने से अच्छा तो एक गाड़ी ले लो, तो दुकाती दाम तो दारी 4 बाइक खरीदने का बराबर है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? 4 गाड़ी खरीदने का बराबर है, तो दुकाती मत लो, कैसे लो? ऐसे टाइप का बात करते हैं। इसको तो मिटा ले। ठीक है, तो ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ दुकाती कार ले लेता हूँ, ओके। दुकाती कार का कॉस्ट है हम लोग का 2,50,000, और एक बाइक का दाम है 50,000। तो अभी बताइए, ये बाइक जो, मतलब जिस का ये जो कार है, ओके, ये बाइक से कितना टाइम्स ज्यादा है? 5 times. 5 टाइम्स, राइट। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग 5 टाइम्स बोलते हैं तो हम लोग एक्चुअल में क्या यूज कर रहा होता है? रेशियो यूज कर रहा होता है, देर इज हम लोग 50,000, सॉरी 2,50,000 बाय 50,000 कर रहा है। कैंसिल कैंसिल, 5 5, ओके, देर इज 25, सॉरी 5 टाइम्स। इसमें मैं अगर बोल दूं, तो अभी बताओ, बाइक जो, देखो हाँ थोड़ा सा, बाइक जो दुकाती का दाम का कितना क्या है, कमती है? समझ रहे? यहाँ पे मैंने पूछा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, के बाइक दुकाती इज तो हम लोग डी इज टू बी किया, ओके। यहाँ पे हम बोला कि बाइक जो दुकाती का कितना टाइम्स है, ओके, मतलब दुकाती जो बाइक का कितना टाइम्स में है, हमें बोल रहा है बाइक जो दुकाती का कितना टाइम्स में है। तो ये जो आप किया है, जो 5 टाइम्स निकला है, तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट।
1/5 टाइम्स, ठीक है। 0.2. यस, 0 पॉइंट। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे इसको जब रेशियो में करते हैं तो हम पॉइंट को अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, ओके। फिर अभी रेशियो को देखना, थोड़ा समझ में आया कि नहीं आप लोग को? आ रहे सर। यस। जी सर। अभी रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट, व्हाई इज रेशियो इम्पोर्टेंट? आपका क्वेश्चन ऐसे टाइप का आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन में अब जैसे कि जब दुकान में जाता है, ओके, शॉपकीपर जो बोलता है हम 2 kg आलू को मैम आपको हम एप्पल को आपको मैम आपको हम देगा ₹180 में, बोलते हैं। दूसरा जो होता है मैम उसको छोड़ो नहीं यार, ये हम जो अदर अदर शॉप के अदर शॉप ओनर जो बोलते हैं मैम हम आपको 4 kg का 360 देगा, आपको देखिए ना 4 kg मिल रहा है। तो क्या अभी आप किससे खरीदेगा? सर दोनों बराबर है। यस, दोनों बराबर है, ओके। हाउ कम दिस वन? तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे आगे हम लोग क्या करेगा, रेशियो निकालेगा, ठीक है। केजी केजी को साथ में रख दिया, 2 kg, और कर दिया हमने 4 kg को साथ में रख दिया, ओके। तो इसका रेशियो है 1/2। यदि सामान हमको कितना मिल रहा है, ओके, प्रोडक्ट हमको कितना मिल रहा है, और इसका प्राइस को अभी कंपेयर करेगा, प्राइस को कंपेयर 125 360, 18 18 18। तुम आप लोग बोलेगा कि यार गुमराह मत करो, तुम दोनों का तो प्राइस बराबर है, 4 kg देखिए तुम हमको कितना डिस्काउंट कर दिया। तो आप लोग को जब ये सामान बराबर है तो आप लोग बोलेगा हमको 350 में दे दो, तब हो, तब आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है। समझ गया? आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, ओके, कौन सा दुकान में ज्यादा कौन सा दुकान जो क्या है, कौन सा दुकान का एप्पल ज्यादा एक्सपेंसिव है, बोले अब बोलेगा नहीं, सिंस द प्राइस, since the जो quantity of the object and the price is in the same proportion, दाम बराबर है, ओके। फिर आपको जैसे कि क्वेश्चन आएगा, जैसे कि a man travels, ठीक है, एक आदमी चलता है 35 किलोमीटर में, क्या है, सॉरी 35 किलोमीटर इन 2 hours, ठीक है। अगर वो वही सेम स्पीड पे चलता रहे तो 70 किलोमीटर क्या वो 4 आवर में चल पाएगा? तो इसमें क्या है करना है, इसी को हम इसमें जो हम लोग क्वेश्चन देता है हम लोग को लंबा चौड़ा जाना नहीं, स्पीड को भी ढूंढना नहीं, बिकॉज स्पीड सेम है बोला। तो ये बोल रहे हैं कि इट इज, देखिए आप रेशियो एंड प्रोपोजल में मतलब चीज को हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि ये 2 घंटा में इतना चलता है तो क्या 4 घंटा में इतना चल पाएगा, वी आर कंपेयरिंग राइट, कि हाउ मेनी टाइम्स, ऐसे टाइप का कंपेयर कर। तो मैं इधर डाल दूंगा, सबसे आगे आवर्स एंड आवर्स को डाल देगा, ठीक है। 2 hours by 4 hours, that is 2 hours और 4 hours का रेशियो ले लेगा, एंड हम लोग ले लेगा कि 2 hours का कितना था 35 किलोमीटर, एंड 4 hours का कितना है 70, ये इतना चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो हम लोग को रेशियो करना है 2/4 एंड 35/7। तो इसको हम लोग ये वाला को तो 1/2 लगा देने से भी हो जाएगा, एंड बोलिए ये कितना मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा? 2 2
टू, इसका टू, 35 to 70. 35 टू, ओके ओके ठीक है, 1/2। क्या ये रेशियो सेम है, इक्वल है? इक्वल हो गया सर। यस, इक्वल होगा। तो अभी इसको हम सही है कि नहीं, आपको जैसे कि हम प्रूव करके दिखा दें, जैसे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। हो जाएगा, इसको यहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो भी दिन आप लोग को टाइम मिल जाने से थोड़ा दूसरा तरीका से सोल्व करके ट्राई करके देखना, ओके। और जैसे कि क्वेश्चन, ओके। चला गया वो क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, चलिए और एक बार अभी सोल्व करते हैं, ओके। चलिए अभी रेशियो तो हो गया, हम बोलेगा जैसे कि क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन दो, और जैसे सीधा प्रोपोर्शन पे चलते हैं, ओके। क्वेश्चन ये प्रोपोर्शन को भी करने से तो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में क्या होता है, ओके। प्रोपोर्शन में जब टू रेशियो को हम लोग कंपेयर करता है, तो हम लोग को प्रोपोर्शन दे। प्रोपोर्शन का साइन क्या है, दिस इज द साइन, अदरवाइज हम लोग इक्वल भी दे सकते हैं, ओके। तो ये ठीक ये जगह में देखो, यहाँ पे दो है कि नहीं है, दो रेशियो है कि नहीं है, राइट। दो रेशियो के जब हम कंपेयर किए, इसके जगह हम इक्वल दे सकता है, इधर में भी हम इक्वल दे सकते हैं, यस, यहाँ पे भी इक्वल दे सकते हैं। हाँ, रिजल्ट इनकेस नहीं आता है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज इक्वल दे सकते हैं, ओके। बट जब ऐसे फॉर्म में, ये जब डेसिमल ये वाला फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करना है, उसको मेंटेन कर देना है कि ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे देगा आपको, जैसे कि दो बच्चा है, ठीक है, जैसे कि ए एंड बी, दो बच्चा है, ओके। ए के पास है 28 मार्बल्स और बी के पास है 180 फ्लावर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये जो क्या है, ये लोग जो है, जैसे कि इसके पास मार्बल है, एक तो जो मार्बल चाहिए, एक तो जो फ्लावर चाहिए, दोनों ऑपोजिट एक दूसरे को चाहिए। तो ये ए जो क्या किया, 14, उसको दे दिया 14 मार्बल दे दिया, तो उसके बदले क्या दिया, बी ने उसको 90 फ्लावर दे दिया। तो बी जो बोला कि नहीं यार, आपको तो हम बहुत ज्यादा फ्लावर दे रहे लगते हैं, आप तो हमको सिर्फ 14 दिए हैं, आपको हम 90 दिए, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है। तो वैसे ही, तो ये जो जैसे कि बात का बात फिर से गया, चलिए ये बार हम लोग कुबेला सीरम को बना देते हैं। तो कुबेला सीरम के पास है क्या वाला, देखिए यहाँ, ये इसका पास 28 था और 180 था, और हम इसको 14 दिए, और 14 फ्लावर दिए, वो हमको 14 मार्बल दिए, और हमको, सॉरी, हम उसको 90 फ्लावर दिए, और हमको बस 14 मार्बल सिर्फ दिए। देखो ना, हम 90 और 14, 90 और 14 में कितना डिफरेंस, 76, 76 का डिफरेंस, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ऐसे वाला। तो कुकवेला सीरम ने बोला, सुनो ध्यान दो, ओके, ध्यान दो, बोला तुम्हारे पास कितना था,
और वहां से तुमने कितना दिया, ओके। तुम्हारे पास तुमने 14 दिया 28 से, ओके। तो तुमने अपना, जब तुम्हारे पास था तुमने कितना दिया, 1/2 दिया, ओके। देयर इज, इसका हम लोग रेशियो निकाला, नोट दिस वन, सॉरी, ये में नहीं आएगा, ओके, ये नहीं आएगा। तो इसका, ये दोनों का हम लोग रेशियो निकाला, दिस टू का। फिर इसका भी रेशियो निकाला, 90/180। देखा है तो हम लोग को कितना मिला, 1/2। तो क्योंकि बोला, श्रीराम ने बोला ये तो सही है, आपका पास जितना था आप उसका वन डायरेक्ट हाफ दिया, उसने भी हाफ दिया। तो आप जब हाफ हाफ दे रहे हैं तो आपको वहां से हाफ ही तो मिलेगा, राइट। तो दोनों प्रोपोर्शन इक्वल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं है? किसी का यहाँ पे लॉस हो रहा है क्या? एनीवन? ए और बी में से किसी का लॉस हो रहा है? इक्वल है सर। इक्वल है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शन, जब हम लोग क्या है, टू रेशियोज को कंपेयर करते हैं, ओके। तो इसको हम कंपेयर करने के लिए कैसे लिख सकते हैं इसको, अदर वर्ड्स, अभी हम यहाँ पे जो एग्जांपल को चुन के, जो एक्चुअल में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 14:28, क्योंकि रेशियो इसका ही तो निकाला ना। एन प्रोपोर्शनल, किसके साथ प्रोपोर्शनल करना चाह रहा है हम लोग, 90:180 के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसको हम 14/28 लिख दिया, और अब इसको हम इक्वल कर देगा 90/180, आ गया 1/2, 1/2। तो इक्वल है, अब दोनों में से किसी का लॉस नहीं है, ओके। फाइन विद दिस? परफेक्ट है सर, हाँ। ठीक है ना। तो लास्ट अभी हम और एग्जांपल देगा, उसके बाद हम आपको क्या करेगा, हम थोड़ा सा क्वेश्चन देगा तुमको। तो फिर और एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है, दो दो से ए और बी, ए एंड बी उसने मिलके कितना खरीदा, 20 हेयर क्लिप्स खरीदा, कितना, 20 हेयर क्लिप्स। जिसमें क्या है, जो हम लोग को क्या है, 30 रुपीज का लगा, कितना रुपया का लगा, 30 रुपीज। इसमें ए ने दिया है 12 रुपया, एंड बी ने दिया है 18 रुपीज, ठीक है। तो जब ऐसे हुआ तो क्या हुआ, ये जो बोलते हैं चलो हम दोनों क्लिप लिया, 20 क्लिप लिया, हम दोनों दोस्त है, 10-10 भाग करते हैं। कितना भाग करते हैं, 10-10 भाग करते हैं। तो बी ने बोला कि यार ऐसे नहीं होता है, हम ज्यादा पैसे दिए, हमको दो। तो कौन सही बोल रहा है? यहाँ पे वो लोग जितना पैसा दिया उतना हिसाब से तो लेगा, राइट। यहाँ पे देखना, ठीक है। ए और बी ने क्या है, ए और बी है दोस्त, जिसने लिया है 30 रुपीज खर्चा किया, ठीक है। क्या लेने में, ए एंड बी जो 30 रुपीज खर्चा लेने में, 20 क्लिप्स लेने। अब ये दोनों इसको बाग करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये ऊपर का पैसा को अभी के लिए ध्यान मत दो, ठीक है। जो जितना वो लोग पैसा दिया है, ए ने कितना दिया था, 12 रुपये, बी ने कितना दिया था, 18 रुपीज। तो इसमें क्या करना है, ये दोनों का प्रोपोर्शन आप चेक करना है। इनकेस आप बांटना चाहते हैं तो देखिएगा आप कि ये तो 2/3, 6 to 12, 6 to 18, तो प्रोपोर्शन इतना आ रहा है, दैट इज, थोड़ा पहले हम सिखाया था, 2 और 3 बचा है ना, तो इसको 2+3 को कर दो, 5 आ जाए। तो ए को कितना मिलेगा,
रेशियो कितना, एक है, यहाँ पे कितना है, 2 है ना वैल्यू, 2/5 ऑफ हाउ मच क्लिप, 20 क्लिप, ठीक है। बी को मिलेगा 3, यस 3/5 ऑफ हाउ मच क्लिप, 20 क्लिप, 4 8 4 12, ठीक है। इतना इतना क्लिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी सही है, जी हाँ सही है सर। फॉलो कर पा रहा है, राइट। हाँ। समझ में आ रहा है ना रेशियो की इम्पोर्टेंस है। हम्म। अभी उसको छोड़ के यूनिटरी मेथड, आप जो सिंपल से करते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड को थोड़ा सा दिखा देगा। जैसे कि हम बोल देगा आपको, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, हाँ आप लोगों को उधर में, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इसका भी हम बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन देगा तब आपको पता चलेगा, ओके। यूनिटरी मेथड जो क्या आता है, सबसे आगे जिसके लिए हम लोग हो जाएगा, हम क्वेश्चन देके आपको सॉल्व करा लेगा, तब आपको और अंडरस्टैंडिंग लगेगी, क्वेश्चन देके डेफिनेशन देने से। अगर है, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 cans of juice is ₹210 है, ठीक है। then what will be the cost of 4 cans, कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड है ना, यूनिटरी मेथड क्या है, मतलब सबसे आगे आपको 1 का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो 6 कैन कॉस्ट ₹210, राइट। तो एक कैन का कॉस्ट कितना होगा, 210/6 होगा कि नहीं होगा। ऐसे में हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। ये जो उधर चला जाएगा, ये जो नीचे चला गया, तो हम लोग का होगा 4 कैन का कॉस्ट होगा 2106, ठीक है। ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2106 इंटू 4, ठीक है। 2 2 4, 3 6, 3 7 21, 0 7 3 14, आंसर इज 140। द कॉस्ट ऑफ 4 कैन इज ₹140। समझ में आया, ठीक है। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। Yes, sir. यस, समझ यहाँ गया पे सर। हम, यस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे आगे 1 का वैल्यू फाइंड आउट किया कि नहीं किया, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा क्या है, नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। तो इसको इन केस अगर मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सोल्व करके देखूं, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ये ऐसे अब भी हो जाएगा। केस केन है, कितना केन था, केन 6 केन था, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ओके, देखना है, एक्स एक्स वाई वाई, x1 x2 y1 y2, ओके। तो x x का मतलब क्या है, केन्स को हम बोल रहा, y मतलब क्या, उसका पोस्ट को बोल रहा, ठीक है। x1 मतलब 6 केन को हम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 6 केन का दाम कितना है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कितना है। 210. यस 210। और फाइंड आउट कितना, x2 मतलब क्या है, दूसरा केन जो वहां पे दिया है, तो कितना केन का Four. दुनना है, 4। 4. y2 का भी ये, इसका अभी कोस्ट को ढूंढना है, तो इसको हम लोग y2 ही रख देते हैं, ओके। अब इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. तो अभी आप जब आपको दिया जाता है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और आप जितना कैलकुलेट करने आदत करेगा, आपका ये जो और भी स्पीड से हो जाएगा, ठीक है।
और ये आपको हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन देगा। हाँ, लास्ट लास्ट टाइम भी ज्यादा हो गया, नहीं थोड़ा सा 7 मिनट्स लेगा, क्योंकि आज हम थोड़ा लेट भी है, क्लास भी लेट स्टार्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन देना, ओके? ये आपका एग्जाम ये कॉम्पिटिटिव में बहुत बार आता है, ओके? अब ये सबका मिला के हम करने के लिए कर रहे हैं हम। जैसे कि अभी देगा, रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना है, इज 5:6 है, ठीक है? एंड रेशियो ऑफ बी इज टू सी, दैट्स है हम लोग का 3:1। हम लोग को फाइंड ए इज टू बी इज टू सी, इसका रेशियो। जब आपको ऐसे दिया जाता है, ठीक है, तो क्या ढूंढना है? ए इज टू बी इज टू सी, ये शॉर्ट ट्रिक में है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना सबसे आगे, ठीक है? हम्म, सबसे आगे आपको जो भी ए का रेशियो दिया हुआ है, ओके, 5:6 दिया हुआ है कि नहीं है, ठीक है? ये और ये है कि नहीं है? ये है। बी इज टू सी, बी इज टू सी दिया हुआ है, देर इज ये टिक, ये जो बी का वैल्यू होगा टिक इसका नीचे लगा दो, ठीक है? 3:1, ओके? इधर आप अभी लाइन खींच, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देर इज 6 3 18, तो ये बार ये इसको ऐसा लगा था, और ये नंबर को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई। 6 1 6, 5 3 तो ये हो जाता है हम लोग का इसका रेशियो का आंसर, ओके? और इसका वो दूसरा अलग करने बैठेगा तो बहुत लंबा होता है। हम एक बार रात भर कर करके बैठ के हम भी बीच में पजल हो गया था, तो ये तरीका हमको मिला है कि ये भी शॉर्ट ट्रिक ऐसा एग्जिस्ट करता है, इसलिए आप ये शॉर्ट ट्रिक जरूर यूज करिएगा। तो देखिए, ये नंबर किसी का कॉमन फैक्टर है, सॉरी, किसी का कॉमन मल्टीप्लिकेशन है। यस, 3 का, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। अभी और कटेगा, और नहीं कटेगा, तीनों जो किसी से नहीं कटेगा, तो ये हो जाता है हम लोग का आंसर, ठीक है? तो अभी तो यहाँ पे आपको हम सिंपल से दे दिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या जा बोल जाता है, राज एंड राम है, तो राज का सैलरी जो है राम का 5:4 है, ठीक है? और राम का सैलरी जो सीता से, देयर इज, ऐसे लिख दो, 5:4 है, और राम का सैलरी जो सीता से 7:2 है। अभी बताओ, राज और सीता का सैलरी का कितना रेशियो बताओ, रेशियो क्या हो? तो ऐसे होने से आप आदमी लोग को बहुत पजल करा दे, तो इसमें क्या करना है, ये सेम इसी ऊपर में जैसे किया वैसे ही है, ओके? यहाँ पे आप कर देना है, दैट इज राज और सीता का करना है, ओके? तो आप निकाल लो सबसे आगे ये सब का। अब राज, राम और सीता का आगे रेशियो को निकाल लीजिए। राज का 5:4, राज, सॉरी, राज एंड राम का 7:2, मल्टीप्लाई, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, शायद ऐसे जाता है, ओके? 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 7 5 जा 35। तो ये हो गया हम लोग का सी का वैल्यू, ये हो गया राम का वैल्यू, ये हो गया राज का वैल्यू, यदि सीता का वैल्यू ये हो गया। तो राज इज टू सीता का करना है। तो अभी राज का कितना था हम लोग का, राज का कितना निकला, 35 बाय सीता कितना है 8, दिस इज द आंसर, ठीक है?
समझ में आ रहा है? Yes, sir. जी सर। अब इसका अभी चेकिंग करना हो तो आपको जैसे कि यहाँ पे देखें हम बोलेगा बी इज टू ए इज टू सी का निकालो बोलेगा, ठीक है? ए इज टू सी, ए का वैल्यू यहाँ पर हमको कितना मिला? 15। सी का वैल्यू कितना मिला? 2। ये होगा, सॉरी 5 2। तो यहाँ में ए का वैल्यू तो बराबर ही है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, राइट? तो ऐसे करके ऐसे वाला क्वेश्चन आता है। तो आपको इसको एक्चुअली बिना देखे कैसे सोल्व करना है, जैसे आपका एक क्वेश्चन देगा, ठीक है? एकदम आप देख के सोल्व कर सकते हैं। ए इज टू बी, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। हाँ, क्या है, इतना लंबा चौड़ा ये जो मल्टीप्लाई है, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं करने के लिए, यहाँ में जो भी है इसको नहीं करने के लिए आपको हम क्या बोलेगा, ए ए इज टू, ये ए और बी का क्या रेशियो है? 1/7, ठीक है? और बी एंड सी का रेशियो है 5:19। अभी ऑप्शन आपको देगा जैसे कि 5 5 55 प्लस 133, ठीक है? बी देगा आपको 35 133 55, और सी देगा आपको 55 35 133। इसका आंसर आप लोग बता सकेगा? इसमें क्या करना है आपको, ठीक है? तो यहाँ में आप सोल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट बेचना नहीं है, ओके? आगे आपको ये मिडिल टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, ठीक है? तो यहाँ में 35 है, ये तो 55 है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है, यस। तो प्रोबेबिलिटी है ना, आंसर ये ज्यादा होगा। अब ये दोनों लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, दिमाग में ही सोचो, 17 9 133, हाँ ये भी आ रहा है, ठीक है? तो हम देख के डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, ये ही है आंसर। सबसे आप मिडिल टर्म को ढूंढ के देखो इसके लिए, तो ये हो गया आंसर। हम लोग लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई किया है। नहीं कि तो ठीक है ना? सर ये इजी लग रहा है ये मैथ। क्या लग रहा है? इजी। यस। जैसे कि अगर आपको ऐसे दिया जाए, लास्ट क्वेश्चन है, ओके? द सम ऑफ टू नंबर इज 20, ये कहीं पे आया भी था, हम देखा भी था। द सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड द डिफरेंस इज 2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर? ठीक है? तो सम ऑफ टू नंबर, तो नंबर को क्या है, हम लेट फर्स्ट नंबर भी x एंड द अदर नंबर भी y। सम ऑफ टू नंबर है, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू हाउ मच? 20। और दूसरा कंडीशन क्या था, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज x माइनस y इज 2। तो इसको हम लोग क्या कर देगा, x को इधर रख के 20 माइनस y कर देगा, ठीक है? साइन उधर चला गया माइनस। तो अभी इधर में हम लोग क्या करेगा, ये x का वैल्यू इतना हम लोग अभी मिला, तो अभी के लिए मिला, तो इसको हम लोग क्या करेगा, कंसीडर करेगा, उधर अभी के लिए डालते रहेगा। तो x का जगह में क्या आ जाएगा, 20 माइनस वाई आ जाएगा। इसके बाद माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फॉलो कर पा रहा है? जी हाँ सर। तो 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हम क्या था, माइनस माइनस प्लस, और वेरिएबल भी सेम है, तो -2y, ओके?
तो 20 का साइन यहाँ पे प्लस है, उधर जाने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या कर देगा, y करके ये m प्लस माइनस 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 बना है 18। ठीक है, ये अभी चला जाएगा -2, दैट इज मल्टीप्लाई में था, इधर जाने से साइड चेंज करने से डिवाइड, साइड साइड कैंसिल, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, y इज इक्वल टू 18। अगर y आपको अभी 18 मिल गया तो x प्लस वाई का जगह में हम लोग 20 था, तो x प्लस वाई का जगह में y का वैल्यू हम 18 डाल देगा, तो 20 का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। x इज इक्वल टू 2, मिल गया आंसर। ठीक है, तो अभी देखो ये प्रॉपर्टी को फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, x प्लस वाई हम लोग को देता है 20 और x माइनस वाई देता है हम लोग को 2। अभी देख के देखो, 18 प्लस 2, सॉरी 2 प्लस 18 ना, x का वैल्यू 2 मिला, तो 2 प्लस 18 20 दिया, x डिफरेंस में नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो 2 माइनस, ठीक है, difference of two number gives us 2, the difference is 4। सर वो y का वैल्यू 9 नहीं होगा क्या ना? y का वैल्यू ना, जी सर, 2 9 कहाँ पे, यहाँ पे, 18। यस यस, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ में इतना गलती कैसे आ गया, हम कहाँ पे ऐसे गलती, 9 राइट, यस यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, 9 ना, तो मिलेगा हम लोग को, कितना मिलेगा यहाँ पे, -9 ना, 1, the difference of two number, sum of two number gives us 8। यार ये तो यहाँ में कहाँ में गलती हो गई, 9 18, 9 x plus 9 29, 9 1, तो ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू में गलत लिखा है, एनीवन, में सब्स्टिट्यूट करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, चलो ऐसे तो 18 9 1, तो x plus y is equal to 1 plus 9 is equal to 10। ओ ये सॉरी सॉरी, यस यस, सही है, जाते जाओ आप लोग, बिकॉज इसका रेशियो आता है ना, ये हम रेशियो में बोला ना, इसलिए मेरा, हम क्या कर दिया आप लोग को, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू हम लोग को देता है 20, तो हम लोग को उसका वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू, that is x is 1 and 9 is, y is 19, तो 1/9 होगा या फिर वही होगा। अब एक बार देखना, हाँ इसका, इसको और एक बार आप लोग सॉल्व करके देखना, ये बिकॉज रेशियो में ना, रेशियो में ऊपर में कुछ भी नंबर हो सकता है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी हो सकता है काट के। ओके, ठीक है, एक बार आप लोग देखना, हाँ घर पे। ठीक है सर। एक बार हम और एक बार शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, जैसे कि +20 सर प्लस सर x का वैल्यू हाँ, 11 होगा क्या सर? तो थोड़ा सा रुको, हाँ x का वैल्यू 11 ना, जी 20 -9 का यस स्क्वायर। यस,
यस, वही तो अभी आ गया तो ना। सम ऑफ टू नंबर 20 माइनस वन नंबर 2 दे रहा है कि नहीं दे रहा अभी? सर अभी एक दे रहा है, सेकंड। अभी दे रहा है ना? हाँ सर, हो जाएगा 11। अभी दे रहा है। Yes, sum of two number x plus y, that is 11 plus 9 gives us how much? 20. 11 minus 9 give us how much? 2. ठीक है, अभी आ गया ना। अभी हम ये शॉर्ट ट्रिक करके देख रहे हैं, ठीक है। इसका ही शॉर्ट ट्रिक है, आप देखने का साथ सोल्व कर सकने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक में ट्राई करेंगे। हम आगे शॉर्ट ट्रिक नहीं करते, थोड़ा लंबा करके फिर आप लोग उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे शॉर्ट लंबा में थोड़ा फंस जाते हैं कभी कभी। जैसे कि देखिए, ओके, सम ऑफ टू नंबर, दैट इज सम ऑफ टू नंबर गिव अस 20 एंड द डिफरेंस गिव अस। तो एक बार हम लोग को प्लस कर देना है सेम नंबर को, और एक बार हम लोग को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, समझ रहा है? बोला सम ऑफ टू नंबर हम लोग को 20 देता है, और ये डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर गिव अस 2। ठीक है, तो एक बार उसको हम लोग क्या करेगा, प्लस करेगा, एक बार माइनस करेगा। तो अभी देखिए, ये दोनों को प्लस करने से 22, और इसको प्लस इसको करने से कितना आ जाता है, 18। यस, 11/9। यस, 11/9 मिल रहा है ना, तब इसको हम फ्रैक्शन में 11/9 लिख सकता है। तो हम यहाँ पे जो मेरा आंसर था 11/9, दोनों सेम आ रहा है अभी। यस सर। यस, जी आपको अभी शॉर्ट फॉर्म देने से आप यहाँ से करिएगा, ओके, ज्यादा लंबा जाने ये दिखाना आपको कितना टाइम का, हम भी कुछ से पजल होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे कुछ से शॉर्ट फॉर्म कर लेना, ओके, ठीक है। यस सर। फाइन विद दिस, आज भी कुछ सीखा ना, ऐसे तो बेकार नहीं गया होगा। जी सर। ठीक है, तब तो आज हम बहुत लेट कर दिए साथ में। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू ओके, गुड सर। नाइट। थैंक हाँ, कल जरा क्वेश्चन एक दो ट्राई करके फिर हम लोग दूसरा क्या में चला जाएगा। हाँ, यू जी सर, ओके, थैंक यू। दूसरा टॉपिक में। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड गुड नाइट। नाइट।